हेलो स्टूडेंट्स, आज हम PU2 मैथमेटिक्स में पार्ट 2 बुक में चैप्टर नंबर 12 लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का प्रॉब्लम नंबर 3 सॉल्व करने जा रहे हैं। एग्जाम्पल 1 मैंने पिछले वीडियो में सॉल्व किया है। अब हम इस एग्जाम्पल को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। एग्जाम्पल है, सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम ग्राफिकली, minimize and maximize z equal to 3x plus 9y subject to the constraint x plus 3y less than or equal to 60, x plus y greater than or equal to 10, x is less than or equal to y। यहाँ पर 3 लीनियर इक्वेशंस दिए गए हैं, x greater than 0 और y greater than 0, दैट मीन्स इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। सो यहाँ पर मैंने प्रॉब्लम लिख लिया है। Solve the following problem graphically, minimize and maximize z equal to 3x plus 9y subject to the constraint x plus 3y less than or equal to 60, x plus y greater than or equal to 10, x is less than or equal to y, x greater than or equal to 0 and y greater than or equal to 0। फर्स्ट इनइक्वालिटी, इस इनइक्वालिटी को इक्वल बना लेंगे। फर्स्ट इस इनइक्वालिटी को हम यहाँ पर लिखेंगे। इनइक्वालिटी है x प्लस 3y लेस देन और इक्वल टू 60। फर्स्ट हम इसे इक्वल बना लेंगे। x प्लस 3y इक्वल टू 60। फर्स्ट पुट x equal to 0, put x equal to 0, 0 plus 3y equal to 60, that means 3y equal to 60, y equal to 60 by 3, that is 3 2s are 6, 20. If we put x equal to 0, we are getting y equal to 20. Now take the same equation, x plus 3y equal to 60, and put here y equal to 0. So x plus 3 into 0 equal to 60. It will become 0 here. So x plus 0 equal to 60, x equal to 60. When y equal to 0, x equal to 60. Here when x equal to 0, y equal to 20. So put these values in graph. When x equal to 0, x equal to 0, y equal to 20, and when y equal to 0, x equal to 60. Now draw the line. So this is equation line x plus 3y equal to 60. Now take second line. Our second line is this one, x plus y greater than or equal to 10. X plus y is greater than or equal to 10. Make it equal. इस इनइक्वालिटी को हम इक्वल बनाना है। x plus y equal to 10. Now again put x equal to 0, y will become, यहाँ पर x की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करो, y equal to 10. Next put y equal to 0, you will get, if we put y की वैल्यू 0, you will get x equal to 10. So again plot this line on graph. When x equal to 0, y equal to 10. And when y equal to 0, x equal to 10. Again draw the line. Next last one, that is x is less than or equal to y. Take it equal. इनइक्वालिटी को इक्वल बनाना है। x equal to y.
That means when x equal to 0, y is also 0. Take x equal to 5, y is also 5. Take x equal to 10, y will also become 10. So ये ओरिजिन के ऊपर से लाइन जाएगी. So put x equal to 0, y equal to 0, x equal to 5, y equal to 5, x equal to 10, y equal to 10, x equal to 20, y equal to 20, x equal to 30, y equal to 30. इस तरह से ये लाइन ओरिजिन के ऊपर से पास होगी. This is x is less than or equal to y, and this line is x plus y equal to 10. So if we draw a line, this divides the origin in two regions. अब हमें चेक करना है कि हमारा सॉल्यूशन इस रीजन में आएगा या इस रीजन में आएगा, इस रीजन में आएगा या इस रीजन में आएगा. इसके लिए हमें ओरिजिन डालकर हम चेक करते हैं वेदर द ओरिजिन इज कमिंग इन द सॉल्यूशन रीजन और नॉट. इसके लिए हम यहाँ पर x की वैल्यू y की वैल्यू दोनों 0 डालेंगे. ओरिजिन पर चेक करेंगे. 0 + 0 लेस देन और इक्वल टू 60 विच इज़ ट्रू. दैट मीन्स ये ओरिजिन के साइड ही हमें सॉल्यूशन मिल रहा है. सो इसके जो रीजन है इस तरफ ओरिजिन की तरफ होगा. नेक्स्ट चेक दिस वन, x + y ग्रेटर देन और इक्वल टू 10. हम चेक करेंगे कि ओरिजिन सॉल्यूशन सेट की तरफ है या नहीं, सॉल्यूशन सेट में है या नहीं. 0 + 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 विच इज़ फॉल्स. 0 10 से बड़ा नहीं होता, ये फॉल्स है. इसलिए ये ओरिजिन इस सॉल्यूशन सेट में लाई नहीं करता. सो वी हैव टू टेक द आवर सॉल्यूशन सेट इज अवे फ्रॉम द ओरिजिन. ओरिजिन के अवे है, ओरिजिन से दूर है, इसलिए हमें इस साइड जाना होगा. इस लाइन को हमें इस साइड लेकर जाना होगा, लाइक दिस. जिस साइड ये चला जाएगा. नेक्स्ट कम चेक दिस लाइन. x इज लेस देन और इक्वल टू y. Take any point, this here x equal to 10 and y is equal to 3. You take x equal to 10, y equal to 3 and substitute in this. x equal to 10 means यहाँ आएगा y equal to 3, ये पॉइंट आएगा. इस पॉइंट पर हम चेक करेंगे. तो x 10 is less than or equal to 3 which is false. that means इधर साइड ये नहीं आएगा, सॉल्यूशन सेट इधर नहीं आएगा. सो अवे फ्रॉम दिस वन, दैट मीन्स दिस साइड ये सॉल्यूशन सेट चला जाएगा ये पूरा. तो ये कॉमन रीजन क्या हो गया हमारा यहाँ पर, ये रीजन हमारा कॉमन रीजन है. सो टेक द पॉइंट, दिस पॉइंट एज a ऑफ 0, 10. नेक्स्ट टेक दिस पॉइंट, ये पॉइंट b ऑफ 5, 5. नेक्स्ट c, यहाँ पर ये 15, 15 पर हमें ये पॉइंट मिल रहा है. अगर आपको पॉइंट इजीली ग्राफ में नहीं मिल रहा है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इस लाइन का और इस लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको निकालना है. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए आपको दोनों इक्वेशन लिखना होगा. ये इक्वेशन है x + 3y = 60 और ये इक्वेशन है x equal to y मीन्स x - y = 0. इसका हम x एंड y के वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. फिर आपको ये x एंड y 15, 15 मिल जाएंगे. x = 15, y = 15. इन दो इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है. माइनस करो, ये 0 होगा, ये माइनस माइनस प्लस होगा. 3y + y 4y, 4y = 60, y = 60/4. आपको x 15 और y 15 यहाँ पर मिल जाएगा. टेक दिस पॉइंट एज c ऑफ 15, 15 एंड टेक दिस पॉइंट एज d ऑफ 0, 20. अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z फाइंड आउट करना है. इसके लिए हमें ये डिसीजन बॉक्स में जाएंगे
हमारे ये कॉर्नर पॉइंट्स हैं। सो इस z की वैल्यू में जो यहाँ पर क्वेश्चन में z इक्वल टू सब्जेक्ट टू द कंस्टेंट्स के पहले जो z की वैल्यू दी गई रहती है विच हैज़ टू बी मैक्सिमाइज और मिनिमाइज। सो इसमें हम x एंड y के वैल्यूज़ डालेंगे। सो पुट x equal to 0, here x is 0 and y is 10, put x equal to 0 and y equal to 10 in this equation. So z equal to 3 into 0 plus 9, y की वैल्यू 10 है, 9 into y, 9 into 10, so इसकी वैल्यू होगी 90, 300, 9 10s are 90. Next put z equal to 5, 5, x equal to 5 and y is also 5, 3 into 5 plus 9 into 5, that is 3 into 5, 15, 9 5s are 45, this value will become 60. Next put z equal to 3x plus 9y में x की वैल्यू 15, y की वैल्यू 15, 3 into 15 plus 9 into 15, इसकी वैल्यू होगी 180. नेक्स्ट टेक x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 20, z इक्वल टू 3 into 0 प्लस 9 into 20, y की वैल्यू 20, इसकी भी वैल्यू 300, 920, 9 into 20, 180. सो यहाँ पर आप देखेंगे कि मिनिमम वैल्यू 60 है, मिनिमम वैल्यू, और ये दो वैल्यूज़ मैक्सिमम हैं। सो हमें यहाँ पर लास्ट में लिखना होगा कि मिनिमम वैल्यू कौन सी है और मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, इसके लिए 2 मार्क्स होते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 50 में एक क्वेश्चन है, 6 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। इस टाइप के मैं और वीडियोज़ बनाऊंगी इंशाल्लाह। इसमें इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स के वीडियो मैं बनाऊंगी, इसी में से ही आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सो ये एग्जाम्पल 3 है, एग्जाम्पल 1 का मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाया है। अब लास्ट में इसके लिए 2 मार्क्स होते हैं, मिनिमम वैल्यू के लिए 1 मार्क और मैक्सिमम वैल्यू के लिए 1 मार्क। सो मिनिमम वैल्यू ऑफ z इज 60, मिनिमम वैल्यू ऑफ z इज 60 एट किस पॉइंट पर है ये 5, नेक्स्ट यू राइट मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इक्वल टू, यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यूज़ 2 आए हैं, 180, 180 एट पॉइंट 15, 15 एंड 0,20, z इज 180 एट 15,15 एंड 0,20. सो ये एग्ज़ाम्पल 3 है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम्पल है, बहुत बार एग्ज़ाम में पूछी गई है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एग्ज़ाम्पल. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल.